So hello and welcome everyone. Hope all is well. And let us begin our today's discussion. Last week, just I am going to our website and just searching your workshop batch September, right? So let me click on this September batch. Okay. And what we did last week until now, oh my God, this much. Okay. Last week, what we have decided, have a break, right? So why break? So that we can complete our incomplete work and we can proceed further, because now we are going to move towards a very important chapter. That's very important. That's high important. If we will learn this chapter, then any company you would be able to do research just in 5-10 minutes. But before you do that shortcut, we need to understand these fundamentals, right? So that was the reason we worked so hard during past several weeks, right? As now fundamentals are getting clear, next week we are going to move on technicals, because technicals are easy to understand. Technicals are just charts, and technicals are going to help us understand. Yes, technical will also tell us which is good company, which is bad company, which is based in sector, which sector is performing. And the most important thing, what technical will tell? Buying levels also, like as you searched in your fundamentals. So we are going to move on important chapter. Before we move, today I have thrown in front of you each and every assignment which you have done. You can see here your done assignments are there. Let me first open last assignment. And last assignment was behavior science, right? See, this behavior science tell us several things. If we will jump in this company, for example, if I will go to Amara Raja battery and check its behavior, this page can tell me a different story. For example, Amara Raja batteries last 2 decade growth is 26% CAGR. 26% CAGR is amazing. 26% का growth हर साल का. That's amazing. And that is the reason this company have created huge wealth. If we invested 1 lakh, today's value should be 2-3 crore, right? Why? Due to this growth. So there is not a very any hard formula. Share market is very simple. If we are looking for multi-baggers, if we are looking for wealth creator, we have to search those companies which are able to grow their sales in coming 15 to 20 years, right? Amra Raja, last 2 decades growth 26%, right? Now last 10 years growth only 17%. Growth has fallen from 26 to 17. Still 17 was very good growth. Last 5 years you will see only 10% growth, right? So why this happened? मैं आप लोगों से पूछूंगा. I am going to ask you all, why in majority of your companies you will see this thing? देख रहे हो ना? 20 years growth was huge, 10 years growth, 5 years growth. ऐसा क्यों है? इसका जवाब आपको जीडीपी से मिलेगा, right? Okay. I want to search those companies who are growing by 20%. Just let me do Z2A. Sir, you have your companies. But see, as our work is आधा अधूरा, हाँ, मुझे आंसर भी आधे अधूरे मिले हैं कि नहीं? Right? See. Now, if we will complete this exercise, you will get all your answers in your palm. Right? See, you have the list of the companies growing by very good growth during last 2 decades. You have the companies which are growing by good growth since even last decade, 10 years. Can you see Page Industry 25%, PVR 28, Astral Poly 24, HDFC 24, HDFC Bank 21, IGL
21. This is the list of companies with good growth from your list. कंपनीज देखो 5 साल अच्छे नहीं थे, लास्ट 5 years किसके अच्छे नहीं थे? इंडियन कंपनीज के. No, my dear friends. Whole world last 5 years was not so much extraordinary. But still, here are the list of companies who have given very good sales growth during even last 5 years. आपका लिस्ट है ये, मेरा नहीं है. You have created it. Right? See, very important thing. From this list, I am able to know, are there companies in India whose sales have never fallen during last 20 years? ऐसा कैसे हो सकता है? Businessman knows, is this easy or it is hard? कभी भी तुम्हारा धंधा घटना नहीं चाहिए. क्या 20 साल एक जैसे होंगे? There would be problem many a time, but still there are companies, you know now, which were able to sustain their growth during even bad times. This is the list. You can see your list. See, zero. Zero means sales have never fallen. You have created this list, right? VBL sales, consistent growth. 1 means during last 20 years, only there was 1 year when their sales have fallen. Not bad, yaar. Your HDFC Bank, their sales have never fallen during last 20 years. That is the reason this bank have created huge wealth for you. This is the list. You have the companies. See, profits. You know when you check their behavior, आपने तो पूरा operation किया, है ना? See, this Delta Corp or HDFC Bank, any company. Now you have whole 20 years data with you. पूरा रिसर्च, हर चीज आपको पता है. प्रॉफिट कितनी बार गिरे. See, you know this, when you are working on this list, you are asking your company that whether your sales or profit were down during last 2 decades. But if you would work on those 80% wealth destroyers, believe me, you check their 20 years, 10 years would be loss making. 10 years, right? So don't take it lightly. क्या सब कंपनी का ऐसा होता है? नहीं भाई, ये सब wealth creator है. Today India have limited company with 1 lakh crore sales. Today India have limited country with 500 crore turnover, 1000 crore turnover, only 500 companies. You are going to see more than 25 companies making 1 lakh crore turnover in coming decade. So large companies are going to grow more large. And you're the small and mid-sized companies who are doing wonders in their respective sectors. List would be coming. अभी इंडिया ट्रायंगल है, ऊपर कम कंपनियां, नीचे डगलो है, जो 1000 करोड़ का टर्नओवर मुश्किल से कर पा रही है. Then India will be like this. ऐसा. There would be several companies, mid-sized companies, more than 5,000 companies making 1,000 crore turnover. ये टाइम आएगा. Right? So huge wealth is going to created, but आपको ढूंढना पड़ेगा ना from this Douglas, right? So last several weeks, what you have worked, आपने यही तो काम किया है. When you ask to your companies, यार तुमने 2 बार लॉस किया, which is this company? 2-time loss, VBL. So you understand, okay, VBL ने पिछले दशक में 2 बार लॉस भी किया है. हमें ये भी पूछना चाहिए. What were your brothers doing when you were making losses? All other companies, majority of the company from this industry where VBL belongs, are today also not making profit. Right? There are companies, you know, this one Delta Corp, एक ही बार लॉस किया है, पर एक बार किया है ना, तो तैयारी रखने की, हाई वॉलेटिलिटी. But all other majority of the companies from this type of business are not so big, not doing profit. So कल अगर travel tourism will grow, big companies, the small companies would grow, Delta is going to gain its share. Then he would be consistent. पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो. What does it mean? हम उसको ये कहते हैं, यार which is this company? You made 2-time losses, ICICI General Insurance.
तुमने 2 बार लॉस किया। अरे देखो, none other companies are listed also. In coming 10 years, you are going to see several companies getting listed. But वो क्यों listed नहीं है? Because many of them are today also making losses, right? So this is good one, definitely. Compare with their brothers. Don't compare it with TCS. है ना? Don't compare ICICI with HDFC Bank or TCS. Compare HDFC Bank with ICICI. ये समझ में आया? These are very important factors. ये आपको wealth create करने में, base तैयार करने में, these all things are going to help. Fundamentals हमारे एकदम strong रहने चाहिए. हम वहां पे we should not get weak in this all things. अगर ये पक्के हुए ना, इमारत बुलंद बनने वाला है, right? So today we are going to play game. खेले चिंतन भाई? हाँ? Yes, Piyush bhai, ready. Yeah, we will play game because last week तो आराम था सबको. हाँ, हमने और खास तो Mr. Raghavan ji, today you are there also. Very good and welcome. So there were some problem in South India, right? Atmosphere related. So we have also break. Why we have done this break? So that each and everyone can again get together, right? So welcome back. And today we are going to play game with everyone. Let me start our today's game. And what will be in the game? We are going to discuss all these things: GDP, demanding industry, quality companies, behavior today. Ready now, everyone? I have written some of the topics here. We will start it with GDP, right? So let me start from here. Mr. Arun Kumarji, you can unmute yourself. Chintan bhai, same thing. We will give 2-3 minutes, right? Okay. Yes, Piyush And bhai. Arun Kumarji, आप unmute कर सकते हो. I am going to ask you question in English. Yes, sir. If you want help of other participant, you can even take help of them also while answering. क्योंकि आपने जीडीपी पे तैयारी तो नहीं किया होगा आज, है ना? Sir. लेकिन देखो, you did practical homework. So this practical homework is going to help you. When you will need this thing, memory will help you. क्योंकि आपने काम किया था, आपने थियरी नहीं देखा खाली. Lalit. हाँ? Yeah? Okay, sir. Yeah. So let me begin. GDP. Mr. Arun Kumar, Yes, sir. can you tell me what was the GDP of India in the year 2000? 2000 में हमारा जीडीपी कितना था? Yes. No, sir. वो तो शीट देख के बता पाऊंगा, सर. शीट देख के बता पाओगे? चलो, ये मैंने स्प्रेडशीट ओपन कर ली. ओके, अभी किधर जाऊं? सर, towards right side. ओके, 6 रो में है. इधर है इंडिया. ये इंडिया का ही लाइन है. दिस इज इंडिया ना? Yes, sir. Yeah, India, and we are looking for the year 2000. Okay, here is India. So how much GDP this was? आज कितना जीडीपी है अरुण भाई? नहीं सर. आज का जीडीपी मतलब पिछले साल कितना जीडीपी था इंडिया का ट्रिलियन में? हेल्प करो, अभी किसी से हेल्प लो. कौन बताएगा कितना जीडीपी था लास्ट ईयर इंडिया का इन ट्रिलियन यूएस डॉलर? चिराग सर से. चिराग भाई मदद करो अरुण भाई को. हाँ, अरुण जी को हेलो सर. हाँ, चिराग भाई मदद करो. जीडीपी पिछले साल का इंडिया का. अरे सर आवाज. सर $3 ट्रिलियन. $3 ट्रिलियन. 2.8 ट्रिलियन के आसपास था सर. बराबर राउंड फिगर ले लो ना. 3 ट्रिलियन है ना? 1980 में इंडिया वाज हैविंग टारगेट that we are going to reach 3 trillion in 2020, right? 2000 हमने टारगेट लिया था कि भारत 3 ट्रिलियन इकोनॉमी होगा. So when India took this target, इंडिया का जीडीपी कितना था? ये कितना दिख रहा है?
0.46 मतलब कितना ट्रिलियन हुआ अरुण भाई? हाफ ट्रिलियन। आधा ट्रिलियन। तो आधा जब आप ट्रिलियन। आधे ट्रिलियन के थे एट दैट टाइम व्हाट वाज योर टारगेट? अब्दुल कलाम जी ने टारगेट रखा था ना, 3 इंडिया ट्रिलियन। किधर पहुंचेगा? निकालो 3 ट्रिलियन। 3 ट्रिलियन, राइट? यस सर। और हम लोग, कितना खुशी का बात है कि वो महान आदमी ने जो सोचा था हम वहां पे पहुंचे। वी आर वर इन 2020 एंड वी मिस बाय अ लिटिल, हम लोग ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन पहुंच गए। तो आधा ट्रिलियन जीडीपी था और 3 ट्रिलियन पे हम लोग आए, राइट? 2.88 ओके सर। यानी 2.9। यस सर। डन अरुण भाई? यस सर। ओके। सो इंडिया का ग्रोथ ड्यूरिंग लास्ट 19 ईयर वाज हाउ मच in the terms of GDP? Terms of Yes, during last 19 years, what was the GDP growth of India? Arun bhai se hai. 10%. If Arun bhai want help of anybody, he can ask. 10%. साउंड कट रहा है सर। हेलो, व्हाट इज द क्वेश्चन सर? Okay, question was Hello. during last. Yes, I am repeating the question. कनेक्ट कर दिया लैपटॉप। During एक मिनट, चिंता में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। अरुण भाई के अलावा म्यूट कर देना पड़ेगा सब। Okay, Arun bhai, I have muted you. Kindly unmute again. My question Yes, sir. was during last 19 years, what was the GDP growth of India? 10%. 10%. Absolutely right. That was good growth, sir. Yes sir. During last 19 years, what was the GDP growth of world? टॉप वन रो वाला है 5%। एक मिनट, बिल्कुल कोई टॉप पर। होना तो चाहिए। या वर्ल्ड 5%। yes. How much, sir? 5%. So world was 5%, sir. growing by 5%. Your country was growing by 10%. तो क्या 10%। लगता है अरुण भाई, ये 19 साल में कंपनीज वर एबल टू ग्रो देयर सेल्स? जीडीपी का हमारे शेयर बाजार से क्या लेना देना, समझा पाओगे आप? अगर ओवरऑल डेवलपमेंट रहेगी तभी कंपनीज की डेवलपमेंट रहेगी ना। ओके। ओवरऑल वर्ल्ड सिनेरियो में अगर डेवलपमेंट रहेगी तो इंडिया की डेवलपमेंट रहेगी, इंडिया की डेवलपमेंट रहेगी तो इंडियन कंपनीज की डेवलपमेंट रहेगी। ओके। If the overall world scenario is in a recession phase, then nobody can grow either in the company phase or in the GDP or in the per capita income. But Right. if the market is in a booming phase, then everyone will grow. Right. Okay. Now, if as you have seen here that India have grown by 10%, Yes, so sir. industries, different industries would have taken benefit of this growth. Yes sir, why not? है ना, क्योंकि 3 ट्रिलियन आया किधर से? कुछ तो बड़े होंगे इंडस्ट्री। Yes sir. Right now. Okay. Yes sir. So, yeah. Okay. So my next question is, if India have grown by from आधा trillion to 3 trillion, right? The next Yes. question is to Chirag. Chirag bhai, if India have grown from sir. आधा trillion to 3 trillion, which were the industries which were able to grow? कौन सी इंडस्ट्रीज जबरदस्त बढ़ी पिछले 19 सालों में? सर का चिराग, चिराग। यस चिराग। हेलो सर, आईटी बहुत बढ़िया बढ़ी है, उसके साथ फार्मा बढ़ी है, फिर Okay. हमारी ये पेंट इंडस्ट्री बहुत बढ़िया बढ़ी है, ऑटो इंडस्ट्री बढ़िया बढ़ी है। जैसे हमारा राजा Okay. बिट्रीज हो गई, फिर ये बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये फिर अपनी ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली वोल्टास वगैरह भी अच्छी बढ़ी है सर। उसके साथ वो पीआई इंडस्ट्रीज, पीडी लाइट वाली, ये सारी सब Right. बहुत बढ़िया बढ़िया है सर। ओके चिराग भाई, क्या करने का पता है? आप अभी निफ्टी को देख लो, निफ्टी की सबसे बड़ी कंपनियां कौन है, वहीं से पता चल जाएगा क्या बड़ा है। सबसे बड़ी कौन सी कंपनियां में आती है? टीसीएस, रिलायंस, टीसीएस,
या तो मतलब टीसीएस का धंधा क्या है? टीसीएस, रिलायंस, आईटी। टीसीएस का धंधा, इन्फोसिस का धंधा आईटी। तो आईटी इंडस्ट्री बहुत बड़ी बड़ी, राइट। उसके अलावा बैंक नहीं आती है, एचडीएफसी बैंक? बैंकिंग बड़ी है सर। बैंकिंग भूल गए आप। हाँ। फिर फाइनेंस नहीं बढ़ा है, एचडीएफसी कितना बड़ा बन गया। एचडीएफसी सर, मैं बैंकिंग में हूँ ना, इसलिए भूल गया। तो यार तो growing industry, we can say, Chirag bhai, that these all were growing industries during last 2 decades, right or wrong? It's 2 decades. Yeah, during last 2 decades, Yes, sir. these Yes, sir. all were growing industries. Can you name few growing industries of today? आज कौन सी इंडस्ट्रीज का डबल डिजिट ग्रोथ है? यस सर, एडवर्टाइजिंग मीडिया का बहुत बढ़िया ग्रोथ है। उसके बाद ये एयरलाइंस का बढ़िया ग्रोथ है। उसके बाद ये डिस्टिलरीज का, मतलब ब्रेवरी डिस्टिलरीज का बढ़िया ग्रोथ है। ओके। ये डिक्सा नंबर वाली का भी बहुत अच्छा ग्रोथ है। हाँ, ये डीमार्ट हो गया, आईआरसीटीसी हो गया। These are some new कंपनी नहीं industries। तो चाहिए, आगे जाके कंपनी नहीं। बहुत अच्छा डीमार्ट मतलब कौन? रेस्टोरेंट हो गया, फिर ये रिटेल हो गया। शॉपिंग मॉल, रिटेल इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। शॉपिंग मॉल, या डिपार्टमेंट स्टोर, बराबर। तो रिटेल। ये कुछ आपने ग्रोइंग इंडस्ट्रियों के नाम दिए, राइट। यहाँ पे आपके सामने ही है, ये स्मॉल पूरा फाइनेंस लिस्ट बैंक आपको हो भी नहीं गया तैयार किया हुआ है, राइट। तो आपने कई मेरे को नाम दिए, गुड। सर। ये सब ग्रोइंग इंडस्ट्री में मानो। कौन सा सर, नहीं, क्या बताया आपने? हो गया। ओके ओके। हेल्थ केयर सर्विसेज आता है ग्रोइंग में? हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर में एक आता है, डॉक्टर लालपत लैब वाला सर आता है। देखो वापस कंपनी में आ गए आप। हाँ, कंपनी नहीं वही याद। लाइफ ये नाम इंश्योरेंस याद नहीं, कंपनी, यही वाला नाम याद है। बराबर है। पर धीमे life धीमे insurance, कंपनी से बाहर निकलना है और इंडस्ट्री पे आ जाना है, बराबर ना। लाइफ इंश्योरेंस ग्रोथ किया, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस है उन लोगों का ग्रोथ। सर। ओके, बायोटेक्नोलॉजी का ग्रोथ है। अरे बढ़िया है सर, एक ही कंपनी है, सबसे बढ़िया है। या तो ये सब ग्रोइंग इंडस्ट्री में इन लोगों के नाम आते हैं। वंडरफुल चिराग भाई, वंडरफुल। मुझे किसने कहा है कि वो गिफ्ट बनाने वाली कंपनी एक हनुम टॉय करके है? ये तो आज हम लोग बात कर रहे हैं। सिर्फ 2-3 साल पहले अगर मैं क्वेरी देखता हूं तो एवरीबडी वर कमिंग एंड आस्किंग, पीयूष भाई, हाउ इज दिस हनिंग टॉक्स, हाउ इज दिस हनुम टॉयज? अरे सर, उसमें तो नेगेटिव ग्रोथ है। नेगेटिव ग्रोथ है? हाँ सर, वो सेक्टर में ही पूरा नेगेटिव ग्रोथ है। 3 कंपनियां शायद, मुझे जहां तक याद है, बट उसमें कुछ है नहीं। नाम भी याद रखने के लायक नहीं है। राइट। तो वो तो नेगेटिव ग्रोथ वाला सेक्टर हो गया, बराबर है। ओके, वंडरफुल चिराग भाई, वेरी गुड। चलिए वापस में आऊंगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू सर, इज फॉर मिस्टर ललित। यस ललित भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। या ललित सोरिया, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। हाँ जी सर। या Chirag bhai said biotechnology is a growing sector, right? So Yes. can you name one company where I should invest, which is good one from biotechnology? बायोटेक्नोलॉजी में एक ही कंपनी है, ऑल इन वन, बायोकॉन। बायोकॉन कंपनी। ओके, डिपार्टमेंट स्टोर में? डिपार्टमेंट में अलग अलग ज्यादा है कंपनी, लेकिन सब लॉस करती है, एक ही अच्छी है, डीमार्ट। डीमार्ट, ओके। तो हम क्वालिटी पे बात कर रहे हैं, कौन सी कंपनी अच्छी है और धंधा भी करती है, एंड दैट कंपनी शुड बी विद गुड मार्जिन, विथ लो डेट, राइट। हेल्थ केयर फैसिलिटीज में कोई कंपनी है? हेल्थ केयर फैसिलिटीज कोई ध्यान में? हेल्थ केयर में ये लेबोरेटरी में डॉक्टर लालपत लैब, ओके, वेरी गुड, बढ़िया जा रहे हो आप। लाइफ इंश्योरेंस में मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं? लाइफ इंश्योरेंस में 3-4 कंपनी है, इसमें सबसे अच्छा HDFC लाइफ इंश्योरेंस। राइट, वेरी गुड। इफ आई एम लुकिंग फॉर एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया,
राइट? कैन आई गो विथ हाँ। एनडीटीवी कि टीवी 18? नहीं 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 नहीं, तो कहाँ पे वो निवेश सब करें? एक अफल अफल इंडिया। एफल, ओके, हाँ एफल। राइट। और रूट मोबाइल अभी आईपीओ आया, वो भी कैसा है? हाँ जी। डेप फ्री था कि डेप हाँ, है? उसके ऊपर चेक किया था आपने रूट? ना वो नहीं चेक किया सर। देख लेना सर, जो नई हाँ, कंपनियां अभी देख आ ले रही है, हाँ। देयर आर रुक, वेरी गुड हाँ कंपनीज जी। लाइक कैम्स, हाँ, दिस रूट मोबाइल, रूट राइट? मोबाइल, यस 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 यस। ओके, गुड। इंटरनेट सॉफ्टवेयर सर्विसेज, इस सेक्टर में मेरे को कहां पे निवेश करना चाहिए? कोई एक दो कंपनी ध्यान में आपके? इंटरनेट सॉफ्टवेयर, LTTS है सर। टाटा टाटा एलटीटीएस LTTS, राइट? एलटीटीएस हाँ LNT की, एलएनटीटी बराबर ना? हाँ हाँ LNT। हाँ हाँ तो मतलब ये एलएनटीटी सब हाँ आप क्या कह रहे हो? एक एक सेक्टर की अच्छी अच्छी कंपनी। अब वो सेक्टर में कितनी कंपनी होगी ललित भाई? 50 कंपनियां होगी, राइट? हाँ जी पर हाँ दूसरी जी। कंपनियां कभी प्रॉफिट कभी लॉस करेगी। आपने जो ये एक्सरसाइज की है, ये एक्सरसाइज बढ़िया काम लगेगी। कल अगर सरकार, गवर्नमेंट कम्स टुमारो एंड अनाउंस सम पैकेज ऑन अदर लेजियर फैसिलिटी कंपनी, अदर लेजियर फैसिलिटी में कौन आती है? અધર લેઝિયર ની અંદર વંડરલા, वंडरला आती है, एडलेब आती है, डेल्टा राइट? एडलेब हाँ हाँ या डेल्टा हाँ को हम गिन सकते हैं, एक जैसा ही हुआ, बराबर ना? हाँ पर जी कल हाँ अगर जी बजट में कुछ सरकार ने ऐसा पेश किया, घूमने जाओ तुमको इतना फायदा, हाँ जी। राइट? कि भाई 25,000 का खर्चा करो, टैक्स में राहत, ऐसा आने वाला नहीं है। पर मैं कह रहा हूं खाली कि मान लो हाँ, सरकार ने बोला, गवर्नमेंट गिव सम गुड बेनिफिट टू दिस अदर लेजियर कंपनीज, सर हाँ गवर्नमेंट सेज टूरिज्म को बढ़ाना है, बटन और है अगर इनको कुछ फायदा दिया हाँ जी। तो मेरे को इन्वेस्ट करना है इन दिस सेक्टर, विच कंपनी आई शुड गो विथ? वो डेप्ट फ्री कंपनी, नेट मार्जिन अच्छा होना चाहिए। और वो कौन सा है? लेजियर में मैंने तो एक वंडरला, एडलेब का नाम सुना है, बहुत अच्छा नहीं कंपनी ना है एडलेब, वो घूमने भी गया था मैं इमेजिका में। इमेजिका में तो ज्यादा डेप्ट बर्डन है। पक्का सर, पक्का? पक्का पक्का क्या बात है, ललित भाई के लिए ताली हो जाए, वंडरफुल, शाबाश शाबाश ललित भाई, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ लेट मी मूव फ्रॉम ललित भाई टू साबिर खान। यस साबिर जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग साबिर जी, कैसे हो? बढ़िया, एकदम फाइन, फिट एंड फाइन। ओके। अभी हमारा बातचीत हुआ विथ मिस्टर ललित सोरिया। Lalit bhai said me, have urged me that Piyush bhai, you should invest in Biocon if you are going with biotechnology. Now, why I should invest in Biocon? There is one other company also in biotechnology other than Biocon. कोई एक नाम पैनेका याद है आपको साबिर जी? पैनेका बायोटिक्स। Biocon, which one? पैनेका बायोटिक्स, बायोकॉन अरे के अलावा, लेकिन वेरी धंधा नहीं करती सर, धंधा सिर्फ ओके, बायोकॉन का ही है। ओके। तो मुझे अगर इन्वेस्ट करना है तो मैं बायोकॉन में करूंगा। एक आपने मुझे बोला धंधा नहीं कर रही है वो, दूसरी पैनेका कोई भी बायोटिक्स ऐसी नहीं चीज करती की है। मैं क्यों बायोकॉन में पैसा डालूं? नहीं, बायोकॉन धंधा कर रही है सर, पैनेका बायोटिक्स धंधा नहीं कर रही है। बराबर है, मैं समझ गया आपकी बात। पर हाँ। धंधा हमने माना, चलो धंधा बायोकॉन कर रही है, और कोई खूबी जिससे मैं कन्विंस हो जाऊं कि चलो बायोकॉन में ही पैसा डाले? मेरे को तो डर लग रहा है, ये तो बहुत चल गया है। सर उसके अलावा तो उसका और देखा नहीं है, और क्या ओके, क्या खूबी अलग से देखा नहीं ओके, है। राइट, नो प्रॉब्लम। हम लोग अगर बिहेवियर पे आएंगे इधर, तो हाँ बायोकॉन को देख हेलो, पाएंगे। लेट मी चेक, let me check, here is Biocon, okay, कंसिस्टेंसी ऑफ प्रॉफिट सर। वाह, देखो काम अधूरा है, तो अधूरे काम में यही तो प्रॉब्लम होता है। वी विल नॉट एबल टू डू रिसर्च। लेकिन पिछले 4-5 साल का डेटा है मेरे पास, राइट? अभी ये डेटा भी मैं नहीं जानता पूरा है कि नहीं है, तो यहाँ पे काम आधा है। लेकिन क्या आप जानते हो बायोकॉन के बारे में और कुछ साबिर जी? सर, बायोटेक्नोलॉजी में सबसे टॉप कंपनी यही है सर।
ओके और आपका ये फार्मा में इसका बहुत बड़ा रोल है, इंसुलिन वगैरह बनाती है डायबिटीज के लिए। राइट, चलिए ये मैंने बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर ओपन कर दिया पूरा, राइट। हाँ सर। तो ये डेटा भी सही नहीं है, सही इसलिए ICR नहीं तो है कम ही दिखा रहा है सर। हाँ ICR क्योंकि नहीं, पर सेल्स इसमें स्टैंड अलोन लिए हुए हैं, तो यहाँ पे हाँ। कंसोलिडेटेड डेटा ऐड करना बाकी है, राइट। सो वी विल नॉट कंसीडर दिस डेटा एज फुल डेटा, लेकिन इसको पूरा करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन सबसे अच्छा है सर या इस सेक्टर में। ओके राइट, लेकिन हम ये नहीं मानेंगे अभी नेट मार्जिन, क्यों? क्योंकि ये डेटा ही अगर पूरा नहीं है तो हमको पता नहीं हाँ चलेगा। हाँ सो फर्स्ट व्हाट वी विल हैव टू डू, वी विल हैव टू कंप्लीट दिस होल डेटा, राइट। लेकिन एक चीज तय है, चलो बायोकॉन है कि जो धंधा कर रहा है, कम डेप्थ है, अच्छे मार्जिन है, राइट। तो अगर ऐसा लगता है कि बायोकॉन बहुत चल गया है, तो ये तो मेरे को 5 साल पहले भी लगता था कि बहुत चल गया है, ये सब चलते ही जाएंगे। क्यों सर चलते इसका जाते हैं? भी क्योंकि क्वालिटी कंपनी चलता ही है, रहेगा, राइट। अपना GDP कितना बढ़ेगा, हाँ, कोई डाउट ही नहीं है इन सब चीजों में। बड़ी कंपनी और बड़ी होगी। ओके, सो यहाँ पे हमने बायोटेक्नोलॉजी तो चलो देख लिया कि बायोकॉन। उसके अलावा अभी जब हमारा बात हुआ ललित भाई से, ललित भाई ने और 2-3 भी हमें रिफर किए थे कंपनियां, राइट। इन्होंने हमें वंडरला की बात की। वंडरला बिलोंग्स टू अदर लेजियर। तो हु इज द टॉप कंपटीटर ऑफ वंडरला? 2-3 कंपनी के नाम। सर नहीं देखा ये मैं। ओके, एक तो आपके कलकत्ता में है लिस्टेड। हाँ सर, वो निको पार्क जिसको बोलते हैं। अरे वाह, देखो ऐसे याद आ गया, मैं आया तो मैंने बोर्ड देखा था कोलकाता में, निको पार्क। हाँ सर हाँ, निको पार्क, लेकिन तो धंधा नहीं है निको सर पार्क, उसका, वंडरला हाँ की तरह धंधा नहीं है, वंडरला राइट, के करीब धंधा नहीं है बिल्कुल। बराबर, उसके जितना तो किसी का नहीं है इंडिया में, राइट। ओके, इनके अलावा, ये सेक्टर के अलावा, जब मैं डिपार्टमेंट स्टोर पे जाता हूं, आप मुझे डिपार्टमेंट स्टोर में डीमार्ट हम मानते हैं इट इज गुड कंपनी, कैन यू टेल मी 2-3 कंपटीटर ऑफ डीमार्ट हु आर सर डूइंग सबसे बिजनेस? बड़ा रिलायंस डिटेल, या वंडरफुल, फिर लेकिन वो लिस्टेड नहीं है। फ्यूचर, यस, फ्यूचर फ्यूचर रिटेल। ग्रुप, और या सर वी मार्ट बोलकर भी है जो हम लोग सिलेक्ट किए थे। वी वी मार्ट मार्ट, कोलकाता में है। धंधा छोटा है सर, धंधा छोटा है इसका। रीजनल प्लेयर है वो, कुछ हाँ ही हाँ एरिया में है वी मार्ट, मेरे ख्याल से ईस्ट इंडिया में है, मतलब शायद कलकत्ता में होगा वी मार्ट, है ना? पता नहीं सर, दिखा तो नहीं है। ओके ओके, डी मार्ट तो कोलकाता में डी मार्ट भी नहीं है सर, डीमार्ट, हाँ वो भी नहीं है वहां पे। कोलकाता में नहीं है। चलो आ जाएगा कुछ समय में। तो और कोई कंपटीटर ध्यान में है वी मार्ट के अलावा? स्पेंसर्स मैंने है तो बहुत सा, आदित्य बिरला का मोर है, स्पेंसर्स है। हाँ, ये सब बड़े तगड़े कॉम्पिटिटर, बराबर, आदित्य बिरला। बट मेजॉरिटी ऑफ दिस कंपनीज आर हैविंग वेरी वेरी shrinked margin, very low margin, and DMart is having very good margin, have high consistency, right sir? यस सर। Okay, now one more question, आपने हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर देखा ना? हाउसिंग फाइनेंस, हाँ, सर HDFC है। ओके, हाउसिंग फाइनेंस इंडिया अभी 65% नहीं, ज्यादा रूरल है और अर्बन होने वाला है। जैसा हम बातचीत करते हैं that majority of the migration which we are going to see in world, majority from world will be seen in India. तो अब भारत की बारी है रूरल टू अर्बन की, तो हाउसिंग फाइनेंस तो चलने वाला है। तो हाउसिंग फाइनेंस में सबसे बड़ा फाइनेंसियर कौन है? सर HDFC। DHFL नहीं? सर DHFL तो बर्बाद हो चुका है सर उस हिसाब से। इंडिया बुल हाउसिंग नहीं है सर, इसके इसके करीब नहीं है कोई। ओके, ICICI होम फाइनेंस वो है लेकिन इसके बराबर नहीं है कोई, HDFC के बराबर नहीं लगता। वो लिस्टेड नहीं है डायरेक्टली, तो आपको उसका डेटा भी नहीं पता होगा, पर HDFC जितना बड़ा नहीं है। सो यू हैव क्लियर पिक्चर दैट इन हाउसिंग फाइनेंस मेरे को पैसा लगाना है, HDFC में ही लगाना है। डन? बिल्कुल। आप ये तो नहीं बोलोगे पीयूष भाई बहुत चल गया है? नहीं सर, सर ऐसा तो कुछ नहीं है।
ज्यादा बड़ा शेयर HDFC का ही है हाउसिंग फाइनेंस में, तो कल भी अगर हाउसिंग फाइनेंस बिकेगा तो शेयर तो HDFC ही ले जाने वाला है जाना, राइट? बिल्कुल। ओके, उसमें कुछ और प्लेयर के नाम पता है आपको हाउसिंग फाइनेंस में? हाउसिंग फाइनेंस में आपका DHFL आप बोले, इंडिया बुल्स वेंचर्स है। यस, उन दोनों को भूल जाते हैं, दे आर नॉट सो मच गुड, पर कुछ और गवर्नमेंट की कंपनियां है वो भी अच्छा कर रही है, किसी का भी नाम पता है? नहीं सर, वो गौर नहीं किया हूँ। ओके, मांगो, LIC है किससे सर। मदद मांगोगे? कौन बोले? अरुण जी बोल रहे ठीक हैं है, LIC। बोल रहा है। हाँ, LIC हाउसिंग फाइनेंस जब से पैदा हुई है क्रेडिट उसने एसीसी कभी करके भी, एक है सर। क्या उसने पर कभी भी लॉस नहीं किया, कंसिस्टेंट। लेकिन HDFC की टक्कर में नहीं आ सकती, बेस्ट इज HDFC। HDFC हो गई, LIC हो गई, LIC भी पुरानी कंपनी है, सिंस 1980 वो लोग हाउसिंग फाइनेंस में है। अपार्ट फ्रॉम LIC विच अदर कंपनीज आर देयर? क्रेडिट एसीसी करके कुछ है सर, क्रेडिट एसीसी ऐसा कुछ। नहीं, वो तो क्रेडिट एक्सेस है ना, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण तो माइक्रो फाइनेंस में है, दैट इज डिफरेंट कंपनी। ओके। पर हाउसिंग फाइनेंस, या यस, एब्सोल्युटली PNB हाउसिंग। तो देखो, when we are doing this mind blowing session, what happens? We are checking some sectors, अलग अलग कंपनी के नाम आ रहे हैं, these all are going to help you. See, Canfin Home Finance is also very good company, बढ़िया पैसा कमा के दिया, but during this volatility, during this last 2-3 year of bad time in finance, वो कंपनी आधे से भी ज्यादा टूटी थी। It have fallen around 65% from its peak. HDFC have fallen 35%, 30%. क्यों ऐसा? साबिर जी एक्सप्लेन कर सकते हो? कैनफिन क्यों 65? यस प्लीज। इनका मैनेजमेंट अच्छा है, डेप्थ कम होगा सर, मार्जिन अच्छा है, तो और बिजनेस भी बड़ा है सर। इन्वेस्टर को विश्वास रहता है और वो कंपनियों में थोड़ा डर लगता है, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी कम होती है। तो आपको भी साबिर जी आने वाले 20 साल में वॉलेटिलिटी कम चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए? इतिहास से क्या सीखने को मिला? सर बड़े कंपनी के साथ जाना है, जिसका धंधा ज्यादा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन जिसकी अच्छी हो, ICR डेप्थ पेइंग कैपेसिटी जिसकी अच्छी हो। करेक्ट। बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, OBC, यूनियन बैंक, this all government banks are trading near their IPO price. But SBI 10 साल से चला नहीं है, but still it is not trading at its IPO price, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। HDFC 3 साल से नहीं चला है, राइट? लेकिन ये समय पे जब बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आधे की आधी हो गई है, at that time HDFC is trading near lifetime high. लो वॉलेटिलिटी होती है क्वालिटी कंपनी में, सो गो विथ क्वालिटी एंड वी विल हैव लो वॉलेटिलिटी, राइट? वंडरफुल साबिर जी, शाबाश। एंड नाउ लेट मी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। ओके, सो नाउ मयंक शाह, तो आप पुराने स्टूडेंट हो, राइट? आपसे बाद में बात करेंगे। मेहुल भाई, अनम्यूट योरसेल्फ। कैसे हो मेहुल भाई? बस सर बढ़िया है, आप कैसे हो सर? मेहुल भाई, गाड़ियां कैसी बिक रही है शोरूम में? भीड़भाड़ आ गई? हाँ बिक रही है सर, इतना ज्यादा नहीं बिक रहा है पर बिक रहा है जरूर। ओके, एकदम मंदी से तो बाहर निकला है ना थोड़ा? हाँ, दीपावली में ज्यादा बिका है, अभी थोड़ा मंदी जैसा है, अभी मार्च के पहले बिकेगा सर, फरवरी मार्च में। राइट, गुड। सो मेहुल भाई, अभी हमारा साबिर जी से बात हुआ और साबिर जी ने हमें इंफॉर्मेशन दिया कि भी ये कंपनी में इन्वेस्ट करो, वो कंपनी में इन्वेस्ट करो। मेरे को आपसे इन्हीं कंपनी में एक इंफॉर्मेशन चाहिए। हाँ सर। ये जो सारी कंपनी थी, डीमार्ट हो, HDFC हो, क्या डीमार्ट का धंधा पिछले इतने सालों में कभी भी घटा है? ऐसा कौन सा साल है जब उनका धंधा ग्रो नहीं हुआ? एक भी साल ऐसा था? यही साल में सर, ये कोरोना की वजह से हुआ ना सर अभी। पर ये साल तो पूरा नहीं हुआ है, अभी मार्च आते आते देखो ये लोग क्या गेम करेंगे। ये साल तो बाकी है ना, मार्च में खत्म होगा।
तो क्या लगता है डीमार्ट का धंधा कभी भी घटा होगा? नहीं सर। पक्का कभी नहीं घटा? एग्जैक्टली सर, देखने के लिए मुझे डेटा देखना पड़ेगा सर। तो फिर हेल्प ले लो, किसकी, किसने काम किया है डीमार्ट पे, किसकी हेल्प लोगे बोलो? अब आप मेरे से बातचीत कर रहे हो तो शायद लैपटॉप पे नहीं देख पाओगे, कोई दोस्त को बोलो आपको चेक करके बताए कि डीमार्ट का धंधा ड्यूरिंग लास्ट a decade, how many time sales have fallen? Who will help? किसने काम किया सर? वो तरुण सर को बता सकते हो सर आप? मैंने ही काम किया था उस पे तो हाँ, पता नहीं। वो टेस्ट में था ना सर वो। अच्छा, ओके। तो डीमार्ट पे किसने काम किया है पूछो, चलो चलो। Who have work done the work in डीमार्ट? ये रहा, टेस्ट में था सर। हाँ, आपने ही किया था सर। चलो चेक करने दो। नहीं, डीमार्ट पे मैंने नहीं किया है, टेस्ट में था, लेकिन मैंने तो खाली रिलैक्सो पे काम किया था, तो लगता है बाकी है, राइट? फिर भी ये ग्रुप में ही बहुत से लोग हैं जिन्होंने किया होगा, राइट? कौन हेल्प कर पाएंगे बोलो? मेहुल भाई को कितनी बार डीमार्ट का धंधा गिरा? यस, देखने दो। आई नहीं थिंक पता सर है? किसी ने काम ही नहीं किया सर अभी तक। ओके, चलो, अगर काम नहीं किया है तो मैं आपको ये डेटा बता देता हूं, राइट? हाँ सर। ऐसी कंपनियों पे विश्वास रखने को, इसीलिए ये लीडर होती है, इसीलिए इनको मार्केट के इतना बड़ा मिलता है, क्योंकि इनका धंधा कभी भी, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। कभी भी धंधा, डाउन अगर नहीं है। धंधा घटता होता तो ये ग्रोइंग इंडस्ट्री में नहीं होते। जब भी कोई पूछता है इंडिया की टॉप ग्रोइंग इंडस्ट्री, हम क्या कहते हैं? रिटेल नंबर 1, बराबर है? तो जुबिलेंट फूड का धंधा कभी भी घटा होगा मेहुल भाई? हाँ सर। हाँ कि ना? कभी भी हाँ, घटा हाँ। होगा? हाँ सर। घटा होगा, ओके। हाँ, यस। किसने किया है काम देखने दो मेरे को। JUBILANT, तरुण भाई ने काम किया है जुबिलेंट पे। तरुण भाई, मेहुल भाई को लगता है धंधा गिरा होगा, क्या कहते हो आप? आपने तो काम किया है इसके ऊपर, कितनी बार धंधा गिरा पिछले, आपने पहला स्टोर जब खुला था इनका तब से लेके पूरा डेटा लिया हुआ है, सिंस 2005। देखो मेहुल भाई, दिख रहा है क्या? जीरो है सर, एक भी बार नहीं गिरा। तो यार, अगर घटा होता तो ये ग्रोइंग इंडस्ट्री में नहीं होती, ग्रोइंग में होती चलो, पर टॉप ग्रोइंग में नहीं। इंडिया में कोई पूछता है विच आर टॉप ग्रोइंग इंडस्ट्रीज, तो हम इसका नाम लेते कि नहीं लेते? ऑर्गेनाइज रेस्टोरेंट, क्यों? तगड़ा ग्रोथ है इन सबका। बर्गर किंग लॉस कर रही है, पर फिर भी क्यों जबरदस्त चली आईपीओ के बाद? ग्रोइंग इंडस्ट्री से है, विश्वास है सबको कि धंधा तो चलने ही वाला है। डन सर? हाँ सर। राइट मेहुल भाई, ये थोड़ी हैबिट कर लेने की, आपको पता रहना चाहिए कि HDFC अपने सेक्टर का लीडर है। अगर आप HDFC को खोल के देखोगे, मैं यहाँ पे HDFC का डेटा ओपन करूंगा, उसका धंधा कभी भी नहीं घटा होगा। लेट मी सी, या बड़ा HDFC, चिराग भाई ने काम किया है पिछले 20 साल में, कितनी बार धंधा घटा मेहुल भाई? नेवर। तो आप ऐसी कंपनी में निवेश करोगे कि वैसी कंपनी में निवेश करोगे who are not having their consistency in sales? ये सेक्टर में मेहुल भाई, जो कंटिन्यूसली उसका सेल बढ़ रहा है उसी कंपनी में हम जाना चाहिए था। हमेशा ये सोचने का, लोग आपको यही कहेंगे HDFC बहुत चल चुका है, तो वो सही बात कहे उनकी, पर उनको ये नहीं पता है कि फंडामेंटल ऐसे है इसलिए वो चल रहा है। फिर उनको बोलने का, आप ले लो इंडिया बुल हाउसिंग ले लो, वो नहीं चला है तो वो ले लो। देखो शेयर बाजार में एक कहावत है बहुत पुरानी, जब मैं नया नया निवेशक था मेरे को भी लोग यही कहते थे, अरे वो ले ले, वो चल गया है, ये चल गया है तो अब ये भी चलेगा।
सुनिए आप लोगों ने, आईटी की कंपनी टीसीएस चल गई, अब तू ये छोटी वाली ले ले, ये भी चलेगी, राइट? फिर वो उसको लेके 10 साल बैठे रहते, चलती नहीं। अरे टीसीएस चली है ड्यू टू हिज फंडामेंटल, हाउ कैन वी कंपेयर दैट कंपनी विद दिस वन, राइट? वो चलती भी है शॉर्ट टर्म, वापस अपने जगह पे, करेक्ट मेहुल भाई? तो बिहेवियर में गलती तो नहीं करोगे जब रिसर्च करोगे तब? नहीं सर। अपने आप से पूछना कि आज अगर ये कंपनी धोखा दे रही है, इफ दिस कंपनी इज नॉट कंसिस्टेंट, आपके लेने के बाद भी ये कंसिस्टेंट नहीं रहेगी, राइट? यस सर। ओके, ये कंपनी ने पिछले 20 साल में सिर्फ एक बार प्रॉफिट घटा है, दिख रहा है आपको? एचडीएफसी का 2009 में खाली एक बार घटा है। अब इनके सेक्टर की दूसरी कंपनियां देखो, 3-4 बार घटा होगा। घटा छोड़ो, देयर वुड बी कंपनीज वुड बी मेकिंग लॉसेस, लॉस कर रही होगी, कहां वहां निवेश करेंगे? हमेशा टॉप क्वालिटी में रहने का, राइट? मेहुल भाई डन सर? यस सर। ओके, सो ऑल क्लियर? मेरे को बताओ मेहुल भाई, आई जस्ट वॉन्ट अंदाजा, खाली अंदाजा चाहिए मेरे को। हाँ। ये डेटा देख के, राइट, वॉचिंग टू दिस डेटा ऑफ जुबिलेंट फूड और एचडीएफसी, और इफ वी सी अदर कंपनी, इफ दिस कंपनी सेल्स हैव नॉट फॉलन, तो उनके भाव पे क्या वॉलेटिलिटी होगी? प्राइस कैसे होंगे? क्या बहुत टूटे होंगे पिछले 20 साल में? क्या 20 में से 4-5 बार आधे हुए होंगे ये शेयर? वॉलेटिलिटी होगी सर, पर इतनी ज्यादा नहीं होगी। सेल्स कंटिन्यूस बढ़ रहा है, पर प्रॉफिट में कोई कारण से कभी कभी प्रॉफिट लेस कम हुआ होगा, उसके रिगार्डिंग एब्सोल्युटली। तो वॉलेटिलिटी कितनी होगी अंदाजे से? 25-30% तो होगी ना, उतना तो 3-4 साल में गिरता ही है शेयर। पर आपने ही बताया है कि आधा होगा, तब तक चिंता मत करो, वो आधा। अरे मैं तो इसलिए बोलता हूँ मेहुल भाई ये चीज, ये मीटिंग का एक डायलॉग है, आधा है तो चिंता मत करो। क्यों पता है? हाँ। क्योंकि जिनसे बातचीत कर रहा हूं उनके पास एचडीएफसी नहीं होता है, उनके पास एलआईसी होता है। जिनसे बातचीत कर रहे हैं उनके पास एचडीएफसी बैंक नहीं होती है, उनके पास आईसीआईसी और एक्सिस होती है। लोग दूसरे हरोल की कंपनियां लेके बैठे होते हैं, इसलिए बोलना पड़ता है भाई आधी, राइट? क्योंकि आधे तो वो बहुत बार होने वाले हैं, पर आपकी ये टॉप की कंपनियां बार बार आधी नहीं होगी, राइट? 20 साल में मुश्किल में 1-2-3 बार ये लोग आधे होते हैं, बाकी वो कंपनियां दूसरे हरोल की बहुत बार आधी होती है। और तीसरे हरोल की कंपनियां, वो आखिर वाली कंपनियां, वो तो 100 की 10 आती है, फिर चलती है, फिर 10 की 1 आती है, उनसे तो दूर रहने का। तो वॉलेटिलिटी भाव की पता चल गई ना मेहुल भाई? ऑल इज क्लियर एकदम? सर वो सर सारी कंपनी टूटती भी उतनी है, पर उसमें जल्दी रिकवर भी करती है, वो डबल ट्रिपल। जैसे मैंने अभी पिछली बार देखा था, इंडसइंड बैंक, इंडोसिंड बैंक, बराबर है। वो 235 तक उसका लो था, अभी वो कुछ 800-900 पे चल रहा है, 3-4 गुना हो गया, बराबर है। तो ये हम अभी चार्ट जब खोलेंगे अगले हफ्ते तब बात करेंगे शेयर कैसे चलते हैं। अच्छी कंपनियां, इट विल फॉल फ्रॉम 100 टू लिमिटेड, कितना? 50 तक टूटेगी, राइट? 50 से वो वापस 100 आती है, और उसकी रेंज क्या होती है? 150 में कुछ समय चलती है। जो बेकार कंपनी होती है दूसरे हरोल की, तीसरे हरोल की, वो 100 से 10 आती है, कितनी टूटती है? 90%। इंडसइंड बैंक कहां से कहां टूटी थी वो आपने देखा कि वो कहां से कहां चली, पर टूटने का बिहेवियर क्या था इंडसइंड बैंक का? कौन बताएगा मेहुल भाई को? What was the behavior of fall? एनीबॉडी? 1500-1600 से टूटना चालू किया था उसने कुछ। वो तो आपने बोला नहीं, आपने तो मनी कंट्रोल वाली भाषा से बात की कि वो इतने से इतनी आई, पर हमें वो भी याद रखना है कि वो 15 से टूट के कितनी आ गई थी? हाउ मच? 250 रुपए। 1500 से 250। अब 250 से वो 800 आई है, पर वो 250 से 1500 आई क्या वापस? नहीं। तो जहां से टूटी वहां तक नहीं आई। एचडीएफसी बैंक कहां से टूटी थी?
1300-1400 रुपए की। कहाँ से कहाँ टूटी वो, एक बार रिपीट करोगे मेहुल भाई? 1300-1400 रुपए से कुछ 800-900 रुपए पे गया था। तो वो भी टूटी थी। देखो टूटने के समय सब टूटेंगे, पर क्वालिटी के हिसाब से वॉलेटिलिटी वी आर चेकिंग। वो 1400 से 800 आई। अब जब वापस बाजार चला तो वो 800 से किधर चली गई? वही रेंज में सर आ जाएगी। वो जहां से टूटी थी उससे ऊपर चल रही है मेरे ख्याल से। हाँ, मार्च में वो जहां से टूटी थी अभी उससे भी वो 15% ऊपर के भाव पे है। ये होती है क्वालिटी कंपनियों का बिहेवियर। वो जितना टूटे हैं उससे ज्यादा रिकवर कर रहे हैं। और ये बात डायरी में लिख दो मेहुल भाई, इंडसइंड बैंक जब वापस 1500 आएगी जहां से वो टूटी थी, तब तक HDFC बैंक 2-3 गुना हो चुकी होगी। और यहाँ से तो HDFC बैंक टूटती लिमिटेड है, चलने में वो वापस पुराने हाई लगा देती है। क्वालिटी कंपनीज टूटेगी कम। इससे ओवरऑल 10-15 साल में आपका पैसा जबरदस्त बनता है। पर ये छोटी कंपनियों में, खराब कंपनियों में रहोगे तो वो चलेगी, अभी 3-4 गुना हो गई, जब मार पड़ने का टाइम आएगा वो वापस आधे के आधे आ जाती। तो आप अगर 5 साल में देखोगे तो गाड़ी वहीं के वहीं। राइट मेहुल भाई? तो ये छोटी छोटी रैलियों में नहीं फंसने का। बराबर? लोग कब फंसते पता है? कोई फॉल में नहीं फंसता है। मैंने लोग नहीं देखे जो फॉल में आते हैं और फंसते हैं। लोगों को फंसाती है रैली। कौन फंसाता है? रैली। रैली में ही लोग देखते हैं, अरे यार ये 5 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, ना आओ घुसो फंसो। बराबर है? ये तो सर मैंने कल जस्ट रेट देखा था, इसकी वजह से मैंने आपको। वो तो अभी और बढ़िया भी रेट दिखोगे, है ना? लेकिन फिर भी फंसने का नहीं। ओके मेहुल भाई? So thank you very much Mehul bhai, and now let me move towards Parimal bhai. Yes Parimal bhai, you can unmute yourself. Yes sir. Parimal bhai कैसे हो? एकदम फाइन? एकदम फर्स्ट क्लास सर। राइट। परिमल भाई, अभी हम लोगों ने एक डेटा चेक किया था कि कंपनियों का ग्रोथ जो 20 साल में था उससे 10 साल में कम है और 5 साल में उससे भी कम है। तो ऐसा क्यों है ज्यादातर कंपनियों का? तभी वो ग्रोइंग इंडस्ट्री थी सर। तो अभी ग्रोइंग नहीं है, ऐसा हुआ? नहीं, तो थोड़ा बहुत सैचुरेशन आने के चांसेस हो सकते हैं। ओके। पर अगर कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट हर साल उनका ग्रोथ हो ही रहा है। और जो स्टार्टिंग में ग्रोथ मिलेगा वो कभी भी बाद में नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तुमको बड़ा जंप दिखेगा ग्रोथ में, बिकॉज वो ग्रोइंग इंडस्ट्री रहती है। ओके, तो फिर अगर हम 50 साल बाद देखेंगे, लॉन्ग में देखेंगे, 20 साल बाद, 50 साल बाद, तो फिर कंपनियों का ग्रोथ ही नहीं होगा। और अगर ये बात सही होती परिमल भाई, तो अमेज़न का भी आज ग्रोथ नहीं होता। नहीं सर, तभी बाद में क्लाइंट बेस बढ़ते जाता है, जैसा जैसा वैसे वैसे इनका ग्रोथ और बढ़ते जाता है। ओके, देखिए इसको आपको ले जाने का जीडीपी के साथ, कि वर्ल्ड का भी जो जीडीपी था पिछले 20 साल का अच्छा था, 8% था, फिर वो 8 से 5 आ गया और 5 से अभी तो 2% आ गया है। राइट दुनिया का। तो जब आप कंपनियों को बोलते हो भाई तुम्हारा धंधा क्यों नहीं बढ़ा, तो कंपनी को पूछने से पहले हमें देखना चाहिए इंडिया का भी ग्रोथ 10% से 8%, 8% से 5%, राइट? दुनिया का ग्रोथ 10 से 5, 5 से 2। अब मेरे को बताओ हमें हाई ग्रोथ कब दिखेगा, जबरदस्त वापस 15-20% वाला ग्रोथ? जब ये दौर किसके हाथों में है? ये दौर किसके हाथ में? जीडीपी के हाथ में। एब्सोल्युटली, इसीलिए हमने जीडीपी पढ़ा है, राइट? अब खाली इंडिया का जीडीपी की दुनिया का जीडीपी भी काम करेगा? नहीं सर, अगर कोई आउट परफॉर्म कर रहा है तो फिर दुनिया का जीडीपी से कोई लेना देना नहीं। ओके, इंडिया आउट परफॉर्मर तो है, चाइना आउट परफॉर्मर है, पर फिर भी हमको दुनिया के जीडीपी ने इफेक्ट किया। हम 3 साल से इतना बढ़िया नहीं बढ़ रहे इंडिया। थोड़ा बहुत तो इफेक्ट उसका भी थोड़ा पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड जीडीपी अगर खराब है तो। यहाँ देखो पूरी दुनिया कनेक्टेड है। टीसीएस पैसा किधर से लाएगा? टीसीएस का रेवेन्यू किधर से आता है? वो पूरी दुनिया से आता है, जैसे अमेरिका हो गया, यूके हो गया, डेवलप कंट्री से आता है, राइट?
तो अगर वो ही कंट्री नहीं बढ़ रही है तो उसकी इफेक्ट इनको आती है कि नहीं आती है? आती है, आती है। मान लो यूरोप, यूएस, सबका ग्रोथ अच्छा होने लगा वापस, तो वो लोग भी पैसा खर्चेंगे, फायदा टीसीएस को होगा कि नहीं? ये बाकी सब कंपनियों को होगा। राइट। तो आपका ऑटो एंसिलरी 50% नहीं, 50% से ज्यादा माल बाहर फेंक रही है। राइट। यूरोपियन कंट्रीज एक्सपोर्ट कर रही है। राइट। तो इफेक्ट आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, आएगी सर। इसीलिए पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। राइट सर, परिमल भाई? या। तो इंडिया आउट परफॉर्मर है, बढ़िया कर रहा है, पर हमें और बढ़िया करना है तो ये पूरी दुनिया का इसमें तालमेल होना जरूरी है कि नहीं सर? यस यस यस। राइट। तो हम ये उम्मीद रखें कि अब आने वाले साल से अगर पूरा वर्ल्ड अच्छा ग्रोथ करता है, जैसे वर्ल्ड बैंक ने भी बताया कि पूरी दुनिया वापस ग्रोथ के रोड पे आ जाएगी, होल वर्ल्ड वुड बी ग्रोइंग फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, इंडिया वुड बी आउट परफॉर्मिंग, तो आपकी ये सब कंपनियां का क्या हाल होगा? ये सब आउट परफॉर्म करेंगे सर। 15-20% एक्सपेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? धंधा करना चाहिए। अब 15-20% से कंपनी आपकी बढ़ गई, लेकिन परिमल भी आपके पास ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर डेब्ट है जबरदस्त, मार्जिन कुछ है नहीं, इतिहास कहता है कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आपका प्रॉफिट क्या 15-20% से बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। ये रहो दे। इसीलिए हमें क्या करना है सर? कैसी कंपनी में निवेश करना है? वैसे ही कंपनी के निवेश करना जिनका CAGR 15% से बढ़ रहा है। एब्सोल्युटली। धंधा तो बढ़ रहा है 15% से, पर उनके मार्जिन भी अच्छे होने चाहिए, मार्जिन भी अच्छे, इतिहास गवाह होना चाहिए कि भी हमने कभी गलत काम नहीं किया, हमने कभी टैक्स चोरी नहीं की, हमने कभी कोई भी कौभांड में हमारे नाम नहीं आते, तभी तो हम भरोसा रखेंगे। बराबर कि नहीं? नहीं तो फिर ये तो बार बार वही कहानी चलती जाएगी। राइट परिमल भाई? तो मैं उम्मीद रख सकता हूं कि आपके पास बढ़िया ग्रोइंग इंडस्ट्री की कंपनियां हैं और क्वालिटी कंपनीज आप लोगों ने लेके रखी हुई है। कैन आई एक्सपेक्ट? यस यस यस। थैंक यू वेरी मच परिमल भाई, और उम्मीद रखूंगा बढ़िया आने वाला समय प्रतीक्षा कर रहा है। अभी क्रिसमस का टाइम है तो सेंटा गिफ्ट देगा सबको। हमें नहीं पता है कि भगवान ने हमारे लिए भी क्या गिफ्ट पैक करके रखा हुआ है। सही बात है। जब गिफ्ट खुलेगा ना 2030 में, 2030 में, तब अंदर से कंपनियां निकल के आने वाली है जो 100 गुनी बड़ी होगी। उसके लिए हमें आज डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। राइट परिमल भाई? पीयूष भाई एक सवाल पूछना था आपको। कहिए। आप हमेशा IPO पे ये आपका वीडियो देखा है मैंने। राइट। आपने हैप्पीएस्ट माइंड पे वीडियो नहीं बनाया था क्या? नहीं बनाया था। देखो हैप्पीएस्ट माइंड में मैं निवेश करने वाला नहीं था। ओके ओके। अब मैं क्यों नहीं करने वाला था? अपने पास ऑलरेडी TCS है, राइट, LTI है, इन्फोसिस अच्छी है, फिर हैप्पीएस्ट माइंड बुरी कंपनी नहीं, अच्छी ही कंपनी है। पर हम ये TCS में से पैसा निकाल के थोड़ी ना यहाँ डालने वाले। राइट राइट राइट। अब ऐसा कभी होगा कि TCS परफॉर्म नहीं करेगी और हैप्पीएस्ट माइंड परफॉर्म करेगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। इंडस्ट्री की वाइज चलेगा, इंडस्ट्री परफॉर्म करेगी तो हैप्पी माइंड भी अच्छा परफॉर्म करेगी, और वो कर रही है। इंडस्ट्री परफॉर्म नहीं करी तो हैप्पी माइंड नहीं करने वाली है। बराबर ना? यस यस। ओके ओके, so thank you very much Parimal bhai, and now let me move towards next participant, Mr. राजेश सामंत। राजेश भाई मैं भूल गया, राजेश भाई यू आर फ्रॉम सितंबर बैच और व्हाट, माफ करना मेरे को, लेकिन राजेश भाई आर यू फ्रॉम सितंबर बैच? लेट मी चेक। राजेश भाई नहीं, शायद आप पिछली बैच में से बिलोंग करते हो ना? ओके, यस राजेश भाई। हाँ हेलो अमित। हाँ राजेश भाई। हाँ जुलाई बैच का। जुलाई बैच, ओके वंडरफुल। राजेश भाई सब बढ़िया चल रहा है एकदम? हाँ ठीक है सर। ओके, ऑल इज वेल, वेरी गुड। सो लेट मी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट participant from September batch, and thank you Rajesh bhai. You're welcome sir. Yeah. Okay, I don't know SMR. SMR माने कौन है? मैं नहीं पहचान रहा हूं उनको, राइट? सो
तरुण भाई विज, यस तरुण भाई, आर यू ऑनलाइन राइट नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Good evening, कैसे हो sir. तरुण भाई? Fine, thank you, sir. ओके, सो तरुण भाई, आपने जब बहुत सी कंपनियों का डेटा डाला, राइट, अब इतनी सारी कंपनियां हैं यहाँ पे, देख रहे हो आप, जहां पे अगर मैं 10 साल का डेटा निकाल के देखता हूं तो ये सब कंपनियों का धंधा पिछले 10-15 साल में भी बहुत अच्छा बढ़ा है, राइट। ये लिस्ट है आपका, डिविज लैब 19%, इन्फोएज 19%, इन्फोएज 39% का सेल्स ग्रोथ पिछले 20 साल का, अच्छा ग्रोथ है तरुण भाई? Yes, sir. Yes, sir. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ। Yes, sir. लास्ट 10 years 19% ग्रोथ, लास्ट 5 year 12% ग्रोथ, राइट। Sir. इनके प्रॉफिट देखे तो इन्होंने पिछले 20 साल में 3 बार लॉस किए हैं, Yes, sir. इन्होंने 3 बार लॉस, राइट। Yes, sir. तो इससे मुझे डर के रहना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, इन्फोएज तो बुरी कंपनी है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस करती है। मेरे को क्या Sir. सीखना चाहिए ये डेटा से तरुण भाई? इसमें ये पहला तो ये कि सर ये कंसिस्टेंसी नहीं है सर इसमें, ओके, एंड प्रॉफिट में भी कंसिस्टेंसी नहीं है, और उसके बाद बट ये अपने सेक्टर में लीडर है सर। ओके, पर इन्फोएज के अलावा कोई और कंपनी है जिसमें ये कंसिस्टेंसी हो? वो देखा नहीं सर, देखना पड़ेगा सर। ओके, तो मेरे ख्याल से इसका जवाब आपको दे पाएंगे साबिर जी। साबिर जी, तरुण जी से थोड़ी बातचीत कीजिए, तो तरुण जी को कुछ जो क्वेरी है इन्फोएज के बारे में, कुछ डेटा आप उनको बता सकते हो? मैं यहाँ ओपन करता हूँ डेटा इन्फोएज का। सर कोई भी और कंपनी नहीं है जो इसके तरह धंधा करती है सर। ओके, क्वालिटी में कोई और कंपनी नहीं है जो इनके जैसा धंधा करे, जो इनके जैसा प्रॉफिट करे? नहीं है सर, नहीं है कोई। ओके, तो बाकी कंपनियों का कोई प्रॉफिट ही नहीं है सर साबिर जी इनके बैच में? सर इस सेक्टर में नहीं है, इस सेक्टर में अकेला ही यही है, माने सबसे धमाकेदार यही है। तो दूसरी कंपनियां क्यों नहीं है साबिर जी? दूसरी तरफ देखा ही नहीं है सर, इसके अलावा और देखा ही नहीं जा सकता। ओके, पर दूसरी कंपनियां क्यों नहीं है? क्यों ये अकेला एक लौता है अभी और बाकी लिस्टेड कंपनियां भी नहीं है? मेक माई ट्रिप नहीं है, बुक माई शो नहीं है, कितनी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सब क्यों अभी तक आई नहीं ऑनलाइन आईपीओ में? ये तो नहीं बता सकते सर। लॉस कर रही है सब, लॉस कर रही है ना। मेक माई ट्रिप प्रॉफिट में है, ना बुक माई शो प्रॉफिट में है। ये सब प्रॉफिट में आएंगे धीमे धीमे, राइट। तरुण जी, मैं वापस आप पे आ जाता हूं कि जब आपने इनका इतिहास देखा तो इन्होंने 20 साल में 3 बार लॉस किया। सो यू आर राइट, यू नो दैट कंसिस्टेंसी इज नॉट देयर इन देयर प्रॉफिट। बट जब इनके जैसी कंपनियों के पास आए तो पता चला कोई प्रॉफिट ही नहीं कर रहा है सर। तो ये वो गांव में है जो गांव में कोई कमाता नहीं है और ये तो जबरदस्त कमा रहा है, राइट। तो हम इसको कंपेयर इनकी जैसी कंपनियों में करेंगे तो ये उनसे अच्छी कंपनी हुई कि नहीं? सर इस सेक्टर में 5-6 कंपनियां सर, बट उनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है सर, राइट। क्योंकि एक ही अभी शुरुआत है ये सेक्टर की। ये सर, ये अभी नया सेक्टर है सर, इमर्जिंग सेक्टर है सर ये। ओके, एंड शुरुआत में सर अभी थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर होता है जर्नी जब शुरू करते हैं, बट एक बार जब ये कंसिस्टेंसी अगर इनका आ जाएगा और सेल्स ये जनरेट कर पाएंगे तो फिर कंसिस्टेंसी आ सकती है सर। बट थोड़ा टाइम देना पड़ेगा सर इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए सर। तो इसका जवाब अगर मेरे को चाहिए कि ये सब कंपनियां कैसा परफॉर्म करेगी, इनका भविष्य क्या है, तो इनका जवाब मिलेगा। आप जितने भी लोग आज के मीटिंग में हो, आप ये मीटिंग खत्म होने के बाद अपना मोबाइल हाथ में लीजिएगा और अंदर ऐप गिनिएगा कि मेरे मोबाइल में मैंने कितनी ऐप डाउनलोड की हुई है, राइट। एक प्रॉफिट की तो ऐप होगी, राइट। उसके अलावा मान लीजिए बुक माई शो की हो सकती है, फ्लिपकार्ट की हो सकती है, अमेजोन की हो सकती है, कई ऐप होगी। अंदाजे से कितनी ऐप होगी किसी के भी मोबाइल में?
15 के आसपास होंगे। चलो हम चेक करते हैं, आज ये एक्सरसाइज देता हूँ, आप अपने ग्रुप में डाल देना इसका आंसर कि देयर आर दिस मच ऐप इन माय मोबाइल, राइट। अभी तो शुरुआत हुई है, स्मार्टफोन आए कब, 3-4 साल पहले, राइट। ओवरऑल लोगों के पास, और अभी से ये हाल है, मेरे को नहीं पता है कि आने वाले 5-10 साल में हमारे मोबाइल में कितनी ऐप होगी, पर बुक माई शो का ये टारगेट है कि मेरा जो ऐप है वो पूरे भारत में सबके मोबाइल में जाए। 2030 आते आते 110 करोड़ लोगों के हाथ में स्मार्टफोन होगा। अभी खाली 30-40 करोड़ लोग हैं, तो इनका मार्केट कम है, बेचारे लॉस कर रहे हैं। अब जो 30-40 करोड़ लोगों के पास है स्मार्टफोन, उनमें कमाने वाले लोग कम है, तो लोग खर्चा नहीं करते बुक माई शो में, मेक माई ट्रिप में, फ्लिपकार्ट पे। इंडिया का ऑनलाइन एक्सपेंस बहुत कम है, तो ये लोग नहीं कमा रहे, तो हम Naukri.com को नहीं बोल सकते भाई तू क्यों नहीं कमाता है। पर आप जब ये डेटा को ब्रॉडर वे में देखते हो, जब आप ये कहते हो 110 करोड़ लोगों के मोबाइल में पॉलिसी बाजार की ऐप होगी, इनकी जोमेटो की होगी, इनकी 99 एकड़ की होगी, और वो 110 करोड़ लोगों में से कम 50-60 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनकी इनकम बहुत बढ़िया होगी, तब रेवेन्यू कैसी होगी इस सेक्टर की तरुण भाई? ये सब प्रॉफिट में आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर, यस सर। राइट, आज जोमेटो लॉस कर रहा है, पॉलिसी बाजार लॉस कर रहा है, शादी.com लॉस कर रहा है, सब लॉस कर रहे हैं, पर इनको पता है आज हम लॉस कर रहे हैं, उज्जवल भविष्य है अपना। पर ये लोग जब प्रॉफिट में आएंगे ना, तब तक Naukri.com पता नहीं कहाँ होगा, राइट। ये चीज हमें कब पता चलेगी? जब हम पीयर ग्रुप कंपैरिजन करेंगे, राइट तरुण भाई? यस सर, यस सर। या तो ये समझ लीजिएगा, जब भी कोई नया आईपीओ आता है, उस समय भी आप ये मत कहना वो आईपीओ को देख के कि दोस्त तू कितना कमा रहा है, उसको उसके जैसी कंपनी के साथ कंपेयर करके फिर पूछो कि ये कितना कमा रहा है, वो कितना कमा रहा है, राइट। तो हाई क्लियरिटी होगी, राइट सर। एक और सवाल पूछूं तरुण भाई आपको? यस सर, यस सर। ओके सर, आज एक आईपीओ ओपन हुआ, कौन सा आईपीओ ओपन हुआ? वेक्टर फूड्स। वेक्टर, ओके सर। वेक्टर क्यों इतना अच्छा ओपन हुआ, 70-80%? कारण नंबर 1 उसका कंसिस्टेंसी है सर सेल्स में सर, एंड एब्सोल्युटली तरुण भाई, देखो कारण नंबर 1 हमेशा यही होगा, धंधा बढ़ रहा है सर, राइट। वो ब्रिटानिया, नेस्ले, सबके धंधे 10-15% से बढ़ते जा रहे हैं, तो वेक्टर का भी धंधा बढ़ रहा है, राइट। तो कारण नंबर 1 इज धंधा बढ़ता जा रहा है। वेक्टर्स का मार्जिन 5% है, ब्रिटानिया का मार्जिन 20% है। क्या मुझे ब्रिटानिया और वेक्टर को कंपेयर करना चाहिए कि जैसा मैंने Naukri.com को TCS से कंपेयर नहीं किया, वैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए? यस। क्या कहते हो तरुण भाई? सर अभी ब्रिटानिया और नेस्ले जो है सर, ये इस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं सर, इनमें ऑलरेडी मतलब कि इनमें काफी इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर करके अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया है सर, राइट। और ये वेक्टर जो है सर अभी उस फेज में पहुंचा नहीं है सर, इसका इन्वेस्टमेंट अभी होगा, इसलिए मार्जिन के ऊपर थोड़ा फर्क पड़ेगा सर इनिशियल स्टेजेस में। उसके बाद जैसे जैसे इसका बिजनेस बढ़ता रहेगा सर, सेल्स बढ़ते रहेंगे, और उस फेज में जब पहुंचेंगे जहां पे बोले कि और इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की जरूरत ना पड़े, तब ये मतलब कि ये इनके मार्जिन्स बढ़ेंगे सर, और तब काफी रिटर्न्स ये वापस इन्वेस्टर्स को भी देंगे सर। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि ये तो भारत में बिस्किट बेच रहे हैं अभी, राइट। मान लीजिए भारत में 100 लोग हैं, 100 लोग फॉर एग्जांपल। अब इंडिया में वैसे भी जो बिस्किट का कंजप्शन है वो चाइना से 10 गुना कम है, 5 to 10 टाइम पर हेड एक व्यक्ति बहुत कम बिस्किट खाता है चाइना से कंपेयर करने पे, और यूएस और डेवलप कंट्री देखे तो उनसे तो हम बहुत कम बिस्किट खा रहे हैं। ये क्यों ऐसा है? अर्निंग, राइट। प्रीमियम बिस्किट कम खाते हैं लोग, क्यों? अर्निंग। तो तरुण जी, जैसे जैसे अर्निंग बढ़ेगी, आपको लगता है प्रीमियम बिस्किट का कंजप्शन बढ़ेगा? यस सर, यस। राइट। तो ब्रिटानिया हो या वेक्टर, सबके पास पूरा भारत खुला हुआ है, राइट। अब सब कंपनी बैठी हुई है और उनके ध्यान में है इंडिया का मार्केट,
सर बराबर सर। तो सबके सामने एक जितना मार्केट है सर, सब कंपनी चाहे उतना ग्रोथ कर पाएगी। अब अगर कोई छोटी है, कोई कम है, वेल स्टैब्लिश नहीं है, तो सर उसमें जो है वो तो ज्यादा ही धंधा ले जाएगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। सर राइट। कोई कंपनी 10 साल बाद आती है, राइट, तो उसको उतना तो नुकसान होगा ही, और पूरा फायदा जो बड़ी कंपनी ले जाएगी वो तो ले ही जाने वाली है। पर हम ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ ब्रिटानिया का कम होगा और बेक्टर का ज्यादा होगा। अगर ऐसा होता तो पिछले 10 साल का भी ग्रोथ बेक्टर का ब्रिटानिया से ज्यादा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। 10 साल का ग्रोथ भी बेक्टर का ब्रिटानिया से ज्यादा नहीं है, राइट। सर अगर ऐसा होता तो टीसीएस से माइंडट्री का ग्रोथ ज्यादा होता, टेक महिंद्रा का ग्रोथ ज्यादा होता, पर ऐसा नहीं है, राइट सर। गॉट इट। तो यस, मेरा आपको प्रश्न था, वी शुड कंपेयर बेक्टर विद ब्रिटानिया, वी शुड कंपेयर नौकरी विद मेक माई ट्रिप एंड बुक माई शो, बट वी कांट कंपेयर बेक्टर विद एचडीएफसी बैंक। बराबर ना सर? यस सर। राइट। अगर मेरी प्रायोरिटी है, मेरे पास ब्रिटानिया ऑलरेडी निवेश किया हुआ है मैंने, तो मेरे को ब्रिटानिया और नेस्ले अच्छा कमा के देगी, राइट सर। सर बट यस, बेक्टर्स भी अच्छी कंपनी है ना? यस सर। ओके। हेलो सर। यस यस प्लीज। अरुण बोल रहा हूँ। हाँ कहिए सर, जैसे फूड सेक्टर में या बिस्किट सेक्टर में अनऑर्गेनाइज्ड बहुत प्लेयर्स हैं लोकल, yes. तो उसको किस तरह से कंसीडर करेंगे, मतलब डाटा या क्या करेंगे भी, कैसे उसको मानेंगे? ओके हम कोई भी सेक्टर देखेंगे तो उसमें अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर तो होंगे ही, राइट। पर जैसे जैसे ऑर्गेनाइज प्लेयर और आगे बढ़ते रहते, जैसे जैसे इंडिया पूरा ऑर्गेनाइज हो रहा है, वैसे वैसे धीमे धीमे क्या होगा कि ऑर्गेनाइज प्लेयर का धंधा बढ़ता जाएगा। यही चीज रेस्टोरेंट में है, यही चीज यहाँ पे है, यही चीज एक टाइम पे ऑटो एंसिलरी में थी, बराबर ना? ठीक सर। तो जैसे कंट्री डेवलपिंग से डेवलप होता जाता है, आपकी कंपनियां भी, बहुत सी कंपनियां ऑर्गेनाइज में आ जाती है, ठीक सर। राइट। ठीक सर। तो जैसे मैं तो जाता हूँ बिस्किट लेने, तो मैं ब्रांड देखता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे को ब्रिटानिया मायरी चाहिए, मेरे को पार्ले का ये मैरिको चाहिए, राइट। हम क्या कहते हैं, बिस्किट से कोई भी लोकल कंपनी हो, जरूरी नहीं है कि हम उसको खरीदेंगे, राइट सर। ओके सो सर या सो एनीबडी फ्रॉम सितंबर बैच, कोई व्यक्ति ऐसे है जिनसे हमारी बात रह गई हो? मेरे ख्याल से राघवन जी वाज देयर, बट राइट नाउ राघवन जी इज नॉट इन मीटिंग, है ना? सो एनीबडी, सत्या जी, मेरे ख्याल से सत्या इज नॉट देयर इन दिस मीटिंग, या एसएमआर जो लिखा हुआ है वो सत्या जी का है, राइट। सो आई होप we have discussed with each and every person of September batch. Still there is 2 to 3 day time. मैं आपको और संडे तक का टाइम देना चाहता हूं। I am not going to update anything till Sunday. मैं क्यों देना चाहता हूं पता है? ताकि ये जो गैप है ये और कंप्लीट हो जाए। हेलो सर। बोलो चिराग भाई, बोलो। हाँ सर, वो जैसे लास्ट टाइम हमने, हाँ सर, वो एक्सरसाइज की थी मैंने उस पे, स्पिरिट वाली कंपनी पे, यूनाइटेड स्पिरिट पे। हाँ। और हमारी आपसे बात हुई थी और आपने कहा था कि दूसरी कंपनी के साथ चेक करना, तो मैंने यूबीएल का भी किया था उस टाइम पे, और आपसे बात भी हुई थी उसके रिगार्डिंग। तो हमने ये डिस्कस लास्ट में किया था कि उसका मार्जिन 3% है और उससे ज्यादा तो बढ़ने वाला नहीं है, मतलब पॉसिबली कम है कि उसका मार्जिन 8-10% हो जाए, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी का खर्चा ही 60% के आसपास तो हो गया है। तो हमने सेक्टर देख लिया, बताया कि ग्रोइंग सेक्टर है, उसकी कंपनी भी देख ली कि यूबीएल इज द बेस्ट। तो पर उसमें अभी जैसे इन्वेस्ट करना हो तो आपका कुछ परसेंटेज रहता है कि इसमें इतना करो, इसमें इतना करो, वो सर किस तरह से? 2-3%, क्योंकि अच्छा सेक्टर है। इंडिया जैसे बढ़ेगा, लोग पीने वाले हैं और ये धंधा तो चलने ही वाला है, लेकिन प्रॉब्लम भी तो है यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी का मार्जिन है। अगर बजट में ऐसा आया कि एक्साइज ड्यूटी कम करेंगे, तो उस दिन आप तो सडनली उसका जंप आएगा, उस दिन आप
सबसे पहली चीज ये सुन के आप क्या खरीदोगे? यूबीएल कि रिजल्ट की वेट करोगे? नहीं मैं रिजल्ट में देखूं। हाँ नहीं वो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, यही चीज समझ में आनी चाहिए हमें, बराबर ना? कि जब कभी कुछ अनाउंसमेंट आते हैं उसका डायरेक्टली मेरे सेक्टर या मेरी कंपनी पे क्या इफेक्ट आने वाला है वो हम गिन पाने चाहिए, राइट? कितना प्रॉफिट बढ़ेगा ये हमें पता चला तो ये फायदे वाली चीज है, बराबर चिराग भाई? और सर एक अभी और भी क्वेश्चन था। हाँ कहिए सर कभी कभी मैंने कुछ कंपनियों पे काम किया, अभी तो मैं राजकोट आया तो लैपटॉप साथ नहीं है। ओके इक्विटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सर, मतलब कभी कभी इक्विटी कम भी हो जाती है, तो उसका क्या असर होता है? कभी बढ़ जाए कभी कम हो जाए। कम तो होती नहीं है चिराग भाई, कम नहीं होती है इक्विटी। कम इक्विटी एक ही केस में होगी, अगर वो कंपनी ने बायबैक दिया है, जैसे अभी टीसीएस ने बायबैक दिया है, तो थोड़ी इक्विटी तो कम होने ही वाली है, 10% जितनी होगी कम। बाकी ऐसा नहीं होगा कि 100 करोड़ की इक्विटी 500 करोड़ हुई। वो इक्विटी वही केस में होती है अगर वो कंपनी बंद हो गई है और कोई नई कंपनी ने आके उसको खरीदा तो नई इक्विटी बनी, बराबर ना? ओके यूबीएल में ऐसा शायद कुछ हुआ था कि उसमें इक्विटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा था। बराबर, जब मैंने मैसेज ग्रुप में भी मैसेज किया था उस दिन पे। हाँ ये सब कब होता है? जब या तो कंपनी का कोई आईपीओ आ रहा होता है तब इक्विटी में बड़े चेंजेस होते हैं, पर एक बार वो आने के बाद फिर वो गाड़ी ऐसे ही चलती रहती है, राइट? वो मर्जर डीमर्जर होता है, वो समय पे चेंजेस होते हैं। अरविंद मिल का इक्विटी बड़ा होगा उस समय, जब डीमर्जर हो गया, अब 2-3 कंपनियां हो गई तो वो बढ़ गया ना, तो इक्विटी घट गई होगी। समझे इस चीज को? बाकी नॉर्मल केस में आपका जो गोदरेज कंज्यूमर चलता जा रहा है इक्विटी घटेगी ऐसा नहीं होगा। सर ऐसा भी रिलायंस है अभी, हाँ उसमें से अगर फ्यूचर रिटेल या जियो अलग हो जाए तो उसका इक्विटी कम होगा? नहीं कौन सा रिलायंस रिटेल? नहीं जियो कम हो जाए, जियो उसमें से डीमर्ज हो जाए और अलग से लिस्ट हो जाए तो रिलायंस का इक्विटी कम हो जाएगा? डीमर्ज अलग है और लिस्ट अलग है। ये लोग लिस्ट करेंगे तो भी इक्विटी तो कोई चेंजेस ही नहीं होगा ना। लिस्ट करेंगे तो इसका मतलब तो ये हुआ कि रिलायंस रिटेल एक अलग लिस्ट हुआ, जैसे एचडीएफसी में से एचडीएफसी बैंक लिस्ट हुआ था, राइट? पर वो डीमर्ज नहीं हुआ था, डीमर्ज तो दोनों अलग हो गए, बराबर ना? वो तो पूरी स्टोरी सेम अलग का हो सेम गई। रहेगा। हाँ ये तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिलायंस की इक्विटी उतनी ही रहेगी। रिलायंस रिटेल की रियल इक्विटी कितनी है वो आपको उस दिन पता चल जाएगी जिस दिन वो लिस्ट होगा, उस दिन उसकी इक्विटी बाहर आएगी, बराबर ना? पर वो रिलायंस में होल्डिंग मान लो 50% रिलायंस का, आज जैसे 100% होल्डिंग रिलायंस का है, उस समय जब लिस्ट करता है तब रिलायंस कहता है 50% मेरा ही रहेगा, 50% पब्लिक का हो जाएगा। तो हमें ये समझना है अब से रिलायंस रिटेल जितना प्रॉफिट करेगी 85% रिलायंस इंडस्ट्री को मिलेगा, बाकी 50% किसको मिलेगा? नए स्टेक होल्डर को हमको। या बराबर? ओके चलिए नेक्स्ट वीक हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये 3 दिन मैं चाहूंगा और बाकी की कंपनियों को भी काम कर लो ताकि आपको पहला पेज देख के पता चल जाए, राइट? जिन लोगों का पुराना काम बाकी है वो भी अपने काम को थोड़ा कंप्लीट कर दीजिएगा, क्योंकि अब हम एंट्री लेने वाले हैं चार्ट, राइट? नेक्स्ट वीक से चार्ट सीखने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। सर एक क्वेश्चन था सर, अगर टाइम है तो। यस कहिए तरुण भाई, हमेशा टाइम है मेरे पास। सर थैंक यू सर। सर रिलायंस का सर थोड़ा चार्ट खोल, शीट खोल देंगे रिलायंस? एक मिनट। ओके क्यों नहीं आया रिलायंस? सर कंपनी में डाल दी सर, हाँ नीचे आ गया या ओके यस कहिए। सर इसमें थोड़ा सा मेरा डाउट ये आ रहा है कि जब हम करंट ईयर का जो एस्टिमेट करते हैं, हाँ सेल्स और ग्रोथ का सर, सेल्स प्रॉफिट का सर, तो अभी जैसे मैंने ये आपके वीडियो में देखा था सर, तो आपने H1 21 और H1 20 का जो है जो सेल्स और उसका जो ग्रोथ, सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें सर, ऊपर। हाँ ओके गुड राइट। तो ये सेल्स जो है सर -34% है सर,
और प्रॉफिट इसका है 11% से बढ़ा है सर, सेल्स 34% से घटी है H1 में सर। बट अगर मैं यहाँ पे नीचे दूसरा जो टेबल है जहाँ पे Q1 को कंपेयर किया सर 21 और 20 को, और फिर Q2 को 21 20 को कंपेयर किया सर, और लास्ट कॉलम में सर Q2 और कंपेयर किया सर Q1 21 के साथ में। ओके राइट। अब इस साल में सर, इस साल 6 महीने में जो सेल्स सर 15% से बढ़ी है सर Q2 में Q1 के बनस्पत सर। बल्कि और जब देखता हूँ H1 को देखता हूँ सर पूरे पिछले साल और इस साल में, तो -34% से सेल्स घटी है सर। बराबर। अब देखो तरुण भाई, Q2 को Q1 से कभी भी कंपेयर नहीं करने का, कभी भी। राइट सर। तो बहुत गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा सर। अभी मेरा मेहुल भाई से बात चल रहा था, उन्होंने कहा कि दिवाली के समय पे गाड़ियां बढ़िया बिकी, अभी थोड़ी कम है सर। उस समय गाड़ियां ज्यादा बिकी, अभी आप वो क्वार्टर को ये क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो कम होने वाला है। समझ गए। कभी भी Q1 से नहीं, Q3 Q2 से नहीं, ऐसा कभी नहीं करने का क्या? सबसे पहला मेरे को आंसर दो तरुण भाई। Q1 पहला क्वार्टर था इस साल का। यस सर। Q1 इस साल, Q1 पिछले साल अगर हम कंपेयर करते थे तो क्या धंधा कितना घटा था? -37%। -37%। ये था लॉकडाउन का समय तरुण भाई। यस सर। 40% से धंधा गिरा, 31% से प्रॉफिट बढ़ा है सर। राइट। अब ये इसलिए था क्योंकि धंधा जो गिरा था वो ज्यादातर गिरा था उनके पेट्रोकेमिकल्स वाले में। यस सर। प्रॉफिट बढ़ के इसलिए आए थे, कुछ अदर इनकम भी थी, इनके पास पैसे भी आए थे। तो असल में प्रॉफिट बढ़ा नहीं था, पर उनपे इफेक्ट नेगेटिव नहीं आई थी Q1 के समय। अभी हम ये मान के चलते हैं कि धंधा 40% डाउन, तो ये तो चिंता वाली परिस्थिति थी राइट। लेकिन वो समय आपको याद हो तो मुकेश भाई अंबानी लॉकडाउन के समय बाहर आए और उन्होंने ये कहा कि जो हम पे डेप्ट है 2.5 लाख करोड़ की, उसका प्रबंध हो गया है, निवेशक मिल गए। हमें क्या समझना चाहिए इस चीज से? फाइनेंस कॉस्ट कम होगी सर, एक्सपेंसेस कम होंगे। कितनी है फाइनेंस कॉस्ट? फाइनेंस कॉस्ट सर 32% कम हुई है सर। 7,000 करोड़ की फाइनेंस कॉस्ट एक क्वार्टर की है। पूरे साल की कितनी है सर? पूरे साल की सर तकरीबन 25,000 के आसपास आएगी। 25,000 करोड़। 25,000 करोड़। तरुण भाई, भारत में कोई कंपनी नहीं है जो 50,000 करोड़ का मुनाफा करती है। यस सर। अगर ये डेप्ट निकल गई इधर से तो रिलायंस कौन सी कंपनी बनने वाली है इस साल? ये तो बहुत आगे निकल जाएगी सर। जो 50,000 करोड़ का प्रॉफिट करे, कमाल हो जाएगा राइट। तो दिस वाज पॉजिटिव थिंग। नेगेटिव थिंग वाज 40% डी ग्रोथ। लेकिन सबका उस समय ये हाल था, कंपनी 80-80% से धंधे गिरे थे। अब जब H2 के रिजल्ट आए तब आपको अपने आप से 2 प्रश्न पूछने के। प्रश्न नंबर 1 सर, H2 इस साल, H1 पिछले साल, क्या हाल है? क्या हाल थे? H2 इस साल, H1 इस साल और H1 H1 इस साल, H1 पिछला साल। सर सेल्स हमारा 34% डाउन हुआ है सर, और प्रॉफिट हमारा 11% बढ़ा है सर। राइट। तो पहली चीज, धंधा 34% डाउन है। उतना डाउन 37% लॉकडाउन के समय। लॉकडाउन निकल गया तो भी कितना डाउन रहा? 24%। 34%। तो बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट नहीं आए Q2 में, समझे आप? तो ज्यादातर कंपनियों में क्या हुआ पता है तरुण भाई? जिनके धंधे 37% डाउन थे, उनके खाली 10% डाउन रहे Q2 में। यस सर। पर रिलायंस में ऐसा नहीं हुआ। लोग क्या उम्मीद करते थे? 37% धंधा डाउन, मतलब अब खाली 10-15% डाउन रहेगा, पर ये डाउन ज्यादा रहा। उसकी इफेक्ट आपने कहां देखी? भाव पे। आपने देखा जब से रिजल्ट आया तब से वो डाउन है, नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि उम्मीद पे खरा नहीं उतरा है। बराबर है सर? अच्छा तो है ही, इससे बढ़िया और कोई शेयर नहीं है। भारत का सबसे बड़ा रिटेल है, भारत की सबसे बड़ी डिजिटल की कंपनी है, इससे अच्छी और कौन सी कंपनी होगी? लेकिन शॉर्ट टर्म में
हमने उम्मीदें ज्यादा करके बैठे थे और उम्मीद से कम रिजल्ट आया। कैसे पता चल गया आपको? क्योंकि इंप्रूवमेंट नहीं हुआ सर, इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, राइट। ये आपको Q2 दिख रहा है आपको? यस सर। Q2 पिछले साल, Q2 इस साल कैसा रहा? 24% डाउन है सर, -24%। इसको मारुति से कंपेयर करो, Q2 to Q2 मारुति में ग्रोथ है। यस सर। इसलिए मारुति रिजल्ट के बाद ऊपर गया, रिलायंस रिजल्ट के बाद नीचे आया। डन सर? यस सर। तो फिर अभी इसको जब एस्टिमेट करेंगे करंट ईयर 2021 का, तो -34% सेल्स लेंगे, 20% ये। यस सर, -34% है। आप उम्मीद करो कि ये करीबन 9 मंथ के जब रिजल्ट आएंगे तो हो सकता है हम यहाँ पे -25% देखें सर, राइट। ये जो प्रॉफिट 11% है, ये हो सकता है हम यहाँ पे करीबन 15% का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे। अब अगर जो रिजल्ट आते हैं वो 25% से अच्छे नहीं आए तो करेक्शन कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आपने और बाकी निवेशकों ने भी ये उम्मीद करके बैठे हैं, राइट। लेकिन आप 0% उम्मीद करोगे? नो सर, अभी नहीं सर। नहीं, देखो आपने 25% एज्यूम किया है, हो सकता है कोई 30% करे, हो सकता है कोई 20% करे, इट्स नॉर्मल। अलग अलग निवेशकों ने अलग अलग निवेश एज्यूम किया होगा, लेकिन क्या किसी ने 40% एज्यूम किया होगा? नो सर। क्या किसी ने 0%? नहीं। तो अनुमान की एक सीमा होती है, आप कितना अनुमान कर सकते हो उतना यहाँ पे अनुमान करके बैठो, एंड देन वी विल चेक रिजल्ट। ये अनुमान किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा सर, वो इम्पोर्टेंट है। इंप्रूवमेंट हमने क्या देखा? 37 to 34 माइनर इंप्रूवमेंट, पर इतना नहीं, हमें ज्यादा चाहिए था, क्योंकि बाकी कंपनियों ने जबरदस्त इंप्रूवमेंट दिया। आपको पता है डीमार्ट का कितना था रिजल्ट सर? वो मैं चेक नहीं किया सर। -80 था यहाँ पे, और वो खाली -30 जितना रहा, तो इसको कहते हैं बड़ा जंप, हाई इंप्रूवमेंट। करेक्ट। पर इसने इतना बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं दिया, इसलिए डिमांड रिजल्ट के बाद वो अभी लाइफ टाइम हाई लगा दिया उसने, बराबर। तो आपको हमेशा ये करंट रिजल्ट ध्यान में रखने के, जब आप निवेशक हो तरुण भाई, जब आप पैसे लगा रहे हो, पैसे लगाने के बाद ये सब देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो कंपनी अच्छी है, चलने ही वाली है। पर जब मेरे को पैसे लगाने हैं तो मुझे एग्रेसिव होना है कि शांत बैठना है, वो ये रिजल्ट से पता चल जाए। राइट। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए ना तरुण भाई, धीमे धीमे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, यस सर। या ओके, धन्यवाद आप सबका, और मिलेंगे अगले हफ्ते से वापस। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, थैंक यू।